आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अनकरीब उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल करने का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किया ऐलान। सरकारी स्कीमों की सिर्फ तशहीर की जा रही है, अमल नदर, तेलुगुदेशम का इल्जाम। ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरके की वारदात अंजाम देने वाली टोली के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। और रैन बाजार पुलिस ने रूहानी इलाज का झांसा देकर 13 तोले तिलाई जेवरात हड़पने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि 1 हफ्ते में उस्मानिया दवाखाने को किसी भी सूरत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी के साथ वज़ीर आला ने उस्मानिया दवाखाने के तमाम शोबेजात का दौरा किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि दवाखाने की इमारत इंतहाई खस्ता है और ये किसी भी वक्त गिर सकती है। मरीजों, डॉक्टर्स, मेडिकल व ट्रेनिंग तलबा की जानों को खतरा हो सकता है और उसको देखते हुए हुकूमत ने दवाखाना मुंतकिल करने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने कहा है कि उस्मानिया दवाखाने की इमारत को आसार खदीमा की फेहरिस्त से हज़फ करने के लिए गवर्नर और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो मुलाकात करेंगे। इनका कहना था कि आंध्रा व तेलंगाना के 10 अजला बल्कि कर्नाटक और महाराष्ट्र से हज़ारों अफराद इस दवाखाने से इलाज के लिए रुजू होते हैं और दवाखाने की मौजूदा हालत बाइस तशवीश है। वज़ीर आला का कहना था कि मरीजों, डॉक्टर्स, मेडिकल तलबा की जिंदगी अहमियत रखती है। वज़ीर आला ने बताया कि दवाखाने के डॉक्टर्स, तलबा और नर्सेस से मशावरत के बाद दवाखाने को कहाँ मुंतकिल किया जाए, इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाद में इसी मुकाम पर नया दवाखाना तामीर किया जाएगा। నేను మరి హెల్త్ మినిస్టర్ గారు అట్లానే చీఫ్ సెక్రటరీ గారు హెల్త్ సెక్రటరీ గారు ఆ ఎమ్మెల్సీ సలీం గారు అందరం కలిసి హాస్పిటల్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడో 110 సంవత్సరాల క్రితం కట్టబడ్డటువంటి హాస్పిటల్ కారణాలు ఏమైనప్పటికీ ఇప్పుడు చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితిలో ఉంది. అసలు ఏ క్షణంలో ఎప్పుడు కూలిపోతుందో తెలియనటువంటి ఒక భయోత్పాతమైన పరిస్థితి ఉంది. అనేక సందర్భాలలో ఆ సెకండ్ ఫ్లోర్లో కానీ థర్డ్ ఫ్లోర్లో కానీ ఆ బెంచులు ఊడిపడడం, డాక్టర్ల తలలు పడటం, పేషెంట్ల మీద పడటం అవన్నీ కూడా జరిగినాయి. ఈ మధ్యన హెల్త్ మినిస్టర్ గారు నాతో ఆ హాస్పిటల్ గురించి సత్వరం నిర్ణయం చేయకపోతే పెద్ద ప్రమాదం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. సంథింగ్ మే గో రాంగ్, అది మనం చాలా బాధపడతాం. కొన్ని వందల మంది ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది, అపాయమైన పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఈ మధ్య జేఎన్టీయూకి బాధ్యత అప్పగించి ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అప్పగించి ఆ బిల్డింగ్ యొక్క స్ట్రెంత్ ఏంటి ఎగ్జామ్ చేయండి అని చెప్పి ఎంత రిపేర్ చేసినా ఏం చేసినా ఒక 3-4 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఆ బిల్డింగ్ నిలవదు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు నేను చూశాను, నాతో పాటు మీరందరూ కూడా చూశారు. చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి ఉంది. ఇది వర్షాకాలం, ఆ బిల్డింగ్లో స్ట్రెంత్ పోయింది కాబట్టి ఎప్పుడైనా అది కొలాప్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకోసం హాస్పిటల్ని మటుకు పేషెంట్ల ప్రాణాలు కాపాడడానికి, డాక్టర్ల ప్రాణాలు కాపాడడానికి, ఆ నర్సింగ్ కాలేజీలో చదువుకున్నటువంటి నర్సింగ్ పిల్లల ప్రాణాలు కాపాడడానికి, ఆ హాస్టల్లో ఉండే పిల్లల ప్రాణాలు కాపాడడానికి గవర్నమెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది. ఎట్టి పరిస్థితులలో వారం రోజులలో ఉస్మానియా హాస్పిటల్ని ఇక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేయొచ్చు అనే దానికి వైద్య శాఖ మంత్రి గారు అందరూ కలిసి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు మొత్తం మంది కలిసి ఒక డెసిషన్ తీసుకోమని చెప్పాం.
మనం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలోకి కొంత షిఫ్ట్ చేసుకోవడం, కొంత అవసరమైతే ప్రైవేట్ బిల్డింగ్ తీసుకోవడం, మొత్తం మీద ఈ హాస్పిటల్ ఇక్కడ ఉండకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హాస్పిటల్ షిఫ్టింగ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే పేషెంట్ల ప్రాణాలు ముఖ్యం, డాక్టర్ల ప్రాణాలు ముఖ్యం. టెక్నీషియన్స్ కానీ, నర్సెస్ కానీ, ఇతర సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కానీ ఎవరైతే పనిచేస్తూ ఉన్నారో ఏ ఒక్క బిల్డింగ్ కూడా దీనిలో సరిగా లేదు. బట్టలు వాష్ చేస్తానని చెప్పి ఆ బిల్డింగ్ చూస్తే అది చాలా భయంకరంగా ఉంది. टाटा ग्रुप के सदर नशीन सारिस मिस्त्री ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की है। इसे सिर्फ खैर सगाली मुलाकात बताया गया है। इससे पहले सारिस मिस्त्री ने आईटी के वजीर केटीआर के साथ गच्ची बाउली में ट्रिपल आईटी के अहाते में टीसीएस और आईटी शोबे के इश्तराक से रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्राणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट की कालेश्वरम मुंतकली के मंसूबे की सख्त मुखालिफत की है। इस सिलसिले में पार्टी कायदीन का इजलास गांधी भवन में मुनक़िद हुआ। इजलास में सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, कायद अपोजिशन जाना रेड्डी, कौंसल के कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा साबिक वज़रा ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के तर्जुमान ने बताया है कि टीआरएस ने इस प्रोजेक्ट की मुंतकली का एक तरफा फैसला लिया है। टीआरएस रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना पर तनकीदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने सवाल किया कि आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास जिस इमारत में होता है, क्या वो जगह चंद्रबाबू नायडू के बाप की जागीर है? श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि हुसैन सागर से पीने के पानी की सरबराही को मुतासिर करने के लिए आंध्राई हुक्मरान जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद ही चंद्रबाबू नायडू की तेलंगाना पर तनकीद ही मुनासिब नहीं है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलुगुदेशम तेलंगाना कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत पर सरकारी स्कीमों के नाम पर सिर्फ तशहीरी मुहिम चलाने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम केजी ता पीजी मुफ्त तालीम हो या फिर किसानों के कर्जजात की माफी, हुकूमत तशहीर पर तवज्जो दे रही है लेकिन अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि हरितहारम प्रोग्राम के आगाज पर रियासत भर में कोढ़ा पौधे लगाने का दावा किया गया, इश्तिहारात पर काफ़ी रकम खर्च की गई, गरीबों को अराजी देने के अमल का ऐलान किया गया, लेकिन इफ्तिताई तकरीब के बाद ये अमल भी ख़त्म कर दिया गया। आर चंद्रशेखर ने कहा है कि केजी ता पीजी मुफ्त तालीम स्कीम की बड़े पैमाने पर तशहीर की गई, लेकिन अब इस पर भी खामोशी इख्तियार की गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने तांडे को पंचायत का दर्जा देने का दावा किया था, उसे नज़रअंदाज कर दिया गया और कहा कि सिर्फ वज़ीर आला जीएचएमसी के बल्दी इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। इस मौके पर पार्टी के एक और लीडर नरसिंह रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर की जा रही टीआरएस कायदीन की तनकीदों पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला और दिगर टीआरएस कायदीन चंद्रबाबू नायडू के बयानात को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। तेलंगाना आरटीसी के एमडी की हैसियत से वीवी रमना राव का तकर्रुर अमल में लाया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। रमना राव फिलहाल आरटीसी में जेएमडी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। जीओ के मुताबिक रमना राव 1 अगस्त को अपने ओहदे का जायजा लेंगे। उनकी मियाद 2 साल के लिए होगी। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश काबीना की तरफ से जिले कृष्णा के एमआरओ वनाजाक्षी और तेलुगुदेशम रुकन असेंबली के तनाज़े में एमआरओ को कसूरवार ठहराए जाने की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर धर्मनाथ प्रसाद राव ने कहा कि तहकीकात किए बगैर एमआरओ को कसूरवार ठहराना बाइसे अफसोस है। धर्मनाथ प्रसाद ने इल्ज़ाम लगाया कि नए दारुल हुकूमत की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही सिंगापुर को दिया जा चुका था और दारुल हुकूमत की तामीर सिर्फ माली मफाद के लिए की जा रही है, अवाम की सहूलत का ख्याल नहीं किया जा रहा है। हेल्थ कार्ड्स की फाइल पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से दस्तखत किए जाने पर सहाफ़ियों ने इज़हार तशक्कुर किया है। गन पार्क पर तेलंगाना के जहदकारों को तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम, तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट और दीगर सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से इखराज पेश किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए तेलंगाना प्रेस अकादमी के सदरनशीन अलम नारायणा ने कहा कि नई रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला ने सहाफ़ियों के ख़ानदान के लिए
हेल्थ कार्ड्स मंजूर करते हुए एक मिसाली इक़दाम किया है। उन्होंने कहा कि रियासत के सहाफ़ी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सहाफ़ियों के मसाइल पर संजीदगी से तवज्जो देते हुए एक देरीना मसले की यकसुई की है। इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के नौ मुंतखबा रुकन कौंसिल उमर रेड्डी वेंकटेश्वरलू को आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल के सदनशीन चक्रपाणी ने हलफ दिलवाया। इस मौके पर वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन विजय साई रेड्डी, बी सत्यनारायण भी मौजूद थे। बैरूनी रियासतों से मुहिबान मजलिस की दारुसलाम आमद का सिलसिला जारी है। जुमेरात को मुंबई के अंधेरी, जोगेश्वरी, महाराष्ट्र के अहमदनगर, धोलिया और नासिक के अलावा करीमनगर से मुसलमानों के वफूद ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की है। वफूद ने मुतालिका शहरों में मजलिस को मुस्तकम बनाने और मुकामी मुसलमानों के मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्म हो जाने का अज़्म का इज़हार किया है। सिकंदराबाद के इलाके कंटोनमेंट में दुकानात की इनेदामी कार्रवाई पर मजलिस ने एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में नोटिस दिए बगैर 40 साल से कारोबार करते आ रहे अफराद की दुकानात को मुनद्दम कर दिया गया। इतला मिलते ही मुतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी मुकाम वाक़या पहुँच गए और धरना देते हुए मुतासरीन के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। मजलिस की एहतजाज पर कंटोनमेंट बोर्ड के अहदेदार सुजाता ने सैयद अहमद पाशा कादरी से बातचीत की और मुतासरीन को मोहलत देने का तयखुन दिया। सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि बगैर नोटिस दिए कार्रवाई करना मुनासिब नहीं है। गरीब दुकानदारों को वक्त दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इससे तकरीबन 1500 से ज़्यादा खानदान मुतासिर हुए हैं। डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही थी, इस सिलसिले में यहाँ पर आया और यहाँ के हमारे मजलिस के लोग इत्तला दिए, आके स्पॉट पे देखा दुकाना भी है, मकाना भी है, इंतहाई बेदर्दी के साथ तोड़ रहे थे। और यहाँ के इंचार्ज जो मेरे मैडम है, वो मैडम को फ़ोन किया था उस टाइम लिए मुझे बात करने के लिए। उनसे बात किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि तोड़म ताड़ी को रोकिए आप। तो बता रहे थे कि रोड वाइंडिंग है, मैं पिछले कई दिनों से लोगों को इत्तला दे दूँ, ये लोग नहीं हटे। मेरा अंदाजा है कम से कम 10-12 लाख का गरीब लोगों पर नुकसान हुआ, क्योंकि डिमोलिशन की कार्रवाई में बल्दिया वाले किसी के साथ भी, खुसूसन गरीबों के साथ कोई मुरवत रियायत नहीं करती, अंधाधुंध तोड़ देते। टीन का एक शेड है, वो शेड को निकालते वक्त ये लोग 4 हिस्से करके निकालते, टुकड़े करके निकालते, कुप्पा करके निकालते। दोबारा गरीब आदमी वो शेड नहीं खरीद सकता। तो हमारी गुजारिश थी मैडम से, इनको कुछ टाइम दो, ये लोग अपने शेडा निकाल लेते, सामान निकाल लेते, इनका नुकसान होने से बच जाता। और दूसरी कोशिश हमारी है कि ये लोग के मुतबादिल रोजगार के बाद इनको रोजगार से बेहतर 40 साल से दुकाना थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस सिलसिले में मुतल्लिका मिनिस्टर से ज़रूरत पड़ने पर चीफ मिनिस्टर से भी नुमाइंदगी करेंगे, ये हालत से वाकिफ कराएंगे। क्या कंटोनमेंट एरिया तेलंगाना की से बाहर है क्या? यहाँ की कोई हुकूमत अलग है क्या? ये एक ही रियासत का इलाका है, यहाँ की हुक्मरानी अलग कैसा कर सकते हैं? मजलिस के जनरल सेक्रेटरी रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने अतापुर में ज़ेर तामीर ड्रेनेज के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बाज़ अफराद तरक्याती कामों की तकमील के दौरान दखल अंदाजी करते हुए तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मजदूरों को डरा और धमका रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोबारा काम शुरू किया जाएगा, अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उनके साथ सरकारी महकमे जात के ओहदेदार मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर की गई नुमाइंदगी से मुशीराबाद भोलकपुर की रहने वाली 2 गरीब लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम के तहत रकम मंजूर हुई है। दारुसलाम में मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों लड़कियों के सरपरस्तों को रकम हवाले की गई। इस मौके पर मुशीराबाद के मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। पुराने शहर में बोनालो त्योहार के इंतजामात के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने साउथ जोन के मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों और मंदिर कमेटियों के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि बोनालो के मौके पर पुलिस की तरफ से मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने अवाम, मंदिर कमेटियों के जिम्मेदारों और दीगर महकमे जात के ओहदेदारों से ताउन की अपील की है। इस मौके पर DCP साउथ जोन V सत्यनारायण,
एडिशनल डीसीपी बाबूराव और जोन के तमाम इंस्पेक्टर्स भी मौजूद थे। टास्क फोर्स इस जोन की टीम ने तवज्जो हटाकर सरखा करने और तिलाई चैन छीनने की वारदातों में मुलविस ईरानी गैंग के 3 अरकान बशमुल अहम सरगना अमजद अली बेग को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम और सेट स्वाति लकड़ा ने बताया कि अमजद अकबर अली, दाऊद असगर अली और फयाज अंसारी हैदराबाद में 20 से ज्यादा सरखी की वारदातों में मुलविस थे। उनके कब्जे से 85 तोले के तिलाई जेवरात, जिसकी मालियत तकरीबन 25 लाख के लगभग बताई गई है, जब्त कर लिए गए हैं। स्वाति लकड़ा ने बताया कि मस्कुरा सारकीन महाराष्ट्र और तेलंगाना के दिगर अजला में भी 4 ता 5 वारदातों में मुलविस है और अमजद अली बेग को भेवंडी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल वेंकट स्वामी की इत्तला पर मुलजमीन को गुलजारोज के पास गिरफ्तार करते हुए मस्कुरा जेवरात बरामद कर लिए गए। स्वाति लकड़ा का कहना था कि अमजद अली बेग, दाऊद असगर अली और फयाज अंसारी के खिलाफ पीडी एक्ट लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। रैन बाजार पुलिस ने रूहानी इलाज का झांसा देकर तिलाई जेवरात हड़पने के इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी मीरचौक पुलिस गंगाधर ने मीडिया को बताया कि इसने जाबरी कॉलोनी चंद्रायन गुट्टे की रहने वाली 38 साला नशात फातिमा उर्फ नसरीन फातिमा को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा खातून एक मदरसे के लिए चंदा वसूल करने के लिए मुतासरा खातून सैयदा नुसरत के मकान आया करती थी। सैयदा नुसरत असरा से मुतासिर थी। जब गिरफ्तार शुदा खातून ने उसका जिक्र करके उसे 7,500 रुपये माहाना लेकर इसका इलाज करने का बहाना बनाया और वो सितंबर 2014 से मार्च 2015 तक मज़कूरा रकम वसूल करती रही। 3 महीने पहले गिरफ्तार शुदा खातून सैयदा नुसरत के मकान इस वक्त पहुंची जब घर में कोई नहीं था। उसने इलाज के लिए मुतासरा खातून को करीब 13 तोले के तिलाई जेवरात देने के लिए कहा ताकि शैतान को जान से मार दिया जा सके, जिस पर मुतासरा खातून ने तिलाई जेवरात उसके हवाले कर दिए। बाद में जब उसे निशात फातिमा पर शुबा हुआ तो उसने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करते हुए तिलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। रैन बाजार के इलाके में एक शख्स ने अपनी बीवी को जिंदा जला दिया। मुतौफिया बिल्किस बेगम की वालिदा ने इल्जाम लगाया है कि उनकी बेटी का शौहर खदीर अरसे दराज से उसे हरासा करते हुए अजियतें दिया करता था। उसने बिल्किस बेगम को 4 दिन पहले जला दिया और उसे इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और खुद फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि खदीर की 3 बीवियां थीं। पहली बीवी ने खदीर को छोड़ दिया था, जबकि दूसरी बीवी बिल्किस बेगम को जिंदा जला दिया गया, जिसके 2 कमसिन बच्चे हैं। खदीर तीसरी बीवी को बिल्किस की खालाजाद बहन बताते हुए उस्मानिया दवाखाने में तीमारदार की हैसियत से रखकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में रैन बाजार पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। संगारेड्डी में गेम्स टीचर ने कमसिन लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश की। यह वाकया 4 शंबे के दिन केशवा रेड्डी स्कूल में पेश आया, जिसमें गेम्स टीचर ने दूसरी जमात की एक लड़की के साथ ये हरकत की। मस्कुरा टीचर ने बात किसी को ना बताने की धमकी देते हुए लड़की के गाल पर तमाचा भी रसीद कर दिया, जिसकी वजह से वो जुमेरात को स्कूल जाने से घबरा रही थी। वालिदैन की पूछताछ पर लड़की ने तफसीलात बताई। मुतासरा लड़की ने स्कूल की सदर मदरसे को जब ये बात बताई तो उन्होंने टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर उसे गिरफ्तार करवाया। जैसे ही इस वाक़े की खबर लोगों को मालूम हुई तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर स्कूल को बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने स्कूल इंतजामिया को इस वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराया है। औलिया तलबा ने डीईओ को एफआईआर रवाना करने और स्कूल को बंद करवाने का भी प्रोग्राम बनाया है। राजेंद्र नगर के इलाके बुदवेल में नामालूम नौजवान की लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अवाम ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुश्तबा मौत और दिगर जावियों से तहकीकात कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
अनकरीब उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल करने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किया ऐलान। सरकारी स्कीमों की सिर्फ तशहीर की जा रही है, अमल नदारत, तेलुगुदेशम का इल्जाम। ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखे की वारदात अंजाम देने वाली टोली के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। और रैन बाजार पुलिस ने रूहानी इलाज का झांसा देकर 13 तोले तिलाई जेवरात हड़पने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।